Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we will study about the modern approach of political science. As we all know, there are two approaches in political science, I can say that we can divide our subject in two parts. First one is traditional approach, since the very beginning to till the end of World War II, and from that time period 1945 to till today, and that's modern approach of political science. So today we will discuss about the modern approach of political science and the changes regarding this. So, Loswell and Kaplan, according to Loswell and Kaplan, political science as an empirical inquiry is the study of the shaping and sharing of power. After the end of World War II, certain comprehensive changes can be seen in our uh, discipline, which was started in USA. It was the origin of modern approach in political science, and according to this approach, political science can be defined as: first one is study of human activities. First one is uh, study of human activities. So political science basically studies the political life incidents and all other social economic aspects related to it. Basically it studies about the political behavior of a person. And second one is power, the key concept. Modern political scientists consider the power as the key thought of our discipline, and we will study about the power in the separate chapter. And third one is study of political systems, same as there is power, that is political system. So we will discuss thoroughly about the political system in new chapter. And next one is study of decision making process, and according to some thinkers, political science studies about the decision making process, as political science is the study of the government and the main function of the government is to take decision or decision making. Therefore political science is a subject that studies about the decision making process. So four points are there what we study in modern political science in, or according to modern approach of political science. First one is study of human activities, and here it comes the interdisciplinary approach. Second one is power, third one is political system, and fourth one is study of decision making process, the most important process at the government level. And here comes the scope of political science. So the scope is more comprehensive and more realistic in modern approach, and now the political science doesn't begin and end with the state. And here you can see that I have marked here, that is cross is here. That's mean according to modern approach of political science, our subject doesn't begin and end with the state. That's mean now we have a wider scope for our subject or discipline. So here we can see, we can include here in political science, according to modern approach, human and his political behavior, study about the group or group uh, activities regarding the group. And administration is here, international politics along with relations, theories, ideologies, values, including scientific study of our discipline, and economics, sociology, and state plus society. Here we study about the state along with society. And interdisciplinary approach is there. Interdisciplinary approach, that's mean in our discipline we basically study about the political aspects of our life, but along with all the disciplines, all the social sciences, and whatever is related to our subject, or whatever is related to our subject matter, we study about them. Next one is procedures along with structures, NGOs, power, policy making, decision making, leadership, statistics, etc.
आज हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। तो सबसे पहले लॉसवेल और कैपलान की एक कोटेशन आ जाती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति को उसको व्यवस्थित करने, निर्माण करने और उसे शेयर करने का एक अनुभविक अध्ययन है। इसके बाद में आ जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो राजनीति विज्ञान हमारा विषय है, इसे हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आ जाता है परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरा आ जाता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो कि शुरुआत से लेकर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक चलता है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर आज तक जो हमारा सब्जेक्ट है वो आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है। और ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये स्टार्ट हुआ था यूएसए से, दैट्स मीन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग राजनीति विज्ञान कैन बी डिफाइंड, राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। पहला आ जाता है मानव गतिविधियों का अध्ययन या मानव व्यवहार का अध्ययन। तो जो हमारा राजनीति विज्ञान है, इसके अंतर्गत बेसिकली हम लोग राजनीतिक जीवन का, घटनाओं का या राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम जो दूसरे सामाजिक आर्थिक एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उनका भी इसमें अध्ययन करते हैं एक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के साथ में। तो पहला आ जाता है मानवीय व्यवहार का अध्ययन, सेकंड आ जाता है शक्ति का अध्ययन, जिसे कि काफ़ी विद्वान है वो हमारे विषय का की कॉन्सेप्ट मानते हैं, मुख्य अवधारणा मानते हैं। तो ये जो शक्ति है इसको हम लोग एक अलग से चैप्टर में हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। थर्ड आ जाता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसे भी हम लोग सेपरेट चैप्टर में हम लोग वीडियो में करेंगे, इसलिए इसे भी हम लोग तब हम लोग इसे पूरी तरीके से समझेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण प्रक्रिया। यहाँ तक कि कुछ विद्वान का तो ये मानना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये जो पूरा बेस्ड है, ये आधारित है, वो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया। निर्णय किस लेवल पर लिए जाते हैं, क्या प्रोसेस उसमें फॉलो की जाती है, कौन उसमें सहभागी होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ता है, और जो भी इससे रिलेटेड निर्णय निर्माण से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिसिप्लिन। तो यहाँ पर काफ़ी विद्वान ये मानते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर चार बातें हमारे पास में आ जाती है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। पहला आ जाता है मानवीय गतिविधियों का या मानवीय व्यवहार का अध्ययन, दूसरा आ जाता है शक्ति का अध्ययन, तीसरा आ जाता है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, और चौथा आ जाता है निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र है इसका, हम लोग जानते हैं कि परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो उसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा सीमित था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जिन बातों को हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो पहले से ज़्यादा व्यापक और पहले से ज़्यादा यथार्थवादी है। इसीलिए जो राजनीति विज्ञान है इसकी शुरू, प्रारंभ और इसका अंत अब राज्य के साथ में नहीं होता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान का स्कोप है इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो ये वन बाय वन हम लोग इनको देख सकते हैं। देखिए कितना इसका वाइड स्कोप है यहाँ पर। लाइक मनुष्य और उसका राजनीतिक व्यवहार, समूह का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग कर लेते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन हम लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यहाँ पर आ जाती है, सभी तरीके के सिद्धांत आ जाते हैं, सभी प्रकार की विचारधाराएं आ जाती हैं, मूल्य यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अलोंग विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर डिसिप्लिन, मतलब हमारे विषय का वैज्ञानिक अध्ययन जिनका जो निष्कर्ष होता है वो वैल्यू बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर उतना ही स्टडी करते हैं जिससे हमारा जो डिसिप्लिन है उसका साइंटिफिक स्टडी उसकी बनी रहे। अर्थशास्त्र को हम लोग स्टडी करते हैं, समाजशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, राज्य का अध्ययन हम लोग करते हैं लेकिन समाज के साथ में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाता है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इसे भी हम लोग सेपरेट चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का अर्थ होता है कि हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारे राजनीतिक जीवन का अध्ययन करें, लेकिन इसके साथ ही हम लोग हमारे जीवन के जो दूसरे आयाम या जो दूसरे पक्ष हैं, जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है, शैक्षणिक है, उन सबको भी हम लोग स्टडी करें।
नेक्स्ट आ जाता है, इसके अंतर्गत हम संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रक्रियाओं और प्रकारों के साथ में गैर सरकारी संगठन हम लोग स्टडी करते हैं। पावर आ जाता है, पॉलिसी मेकिंग नीति निर्माण, निर्णय निर्माण आ जाता है, लीडरशिप नेतृत्व आ जाता है, और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर जो सांख्यिकीय जितना तथ्य होता है, सांख्यिकीय सर्वेक्षण होता है, उन सबको भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।